हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम द जोग्राफिकली सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक्स कल्चर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक परिवेश और जो है प्रो ऐतिहासिक सभ्यताओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इवन कि इंट्रेंस टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी मान्य रहेगा। ये यूपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण की तरह होगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो होगी उसके रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The Neolithic civilization and their advent of the food production. There is a next topic. There is a part of the geographically setting and the prehistorics is a culture of India. There is a most important here, Neolithics. There is a last phase of prehistory is a term as a Neolithics. The term of Neolithics is a derived from a Greek neo, which mean to the new, and the lithics mean stone. Thus, their term is a Neolithic as referred to the new stone as. There is a new stone as of human culture. In the Indian is a subcontinent, it is dated back is around 8,000 BC. There is around of 8,000 BC. The term Neolithics was acquired by the Jones is a love bog. Their chief characteristics of this age was the new types of around and published stone tools. This period also is a mark their beginning of cultivation of plant and is a domestications of animals. It is a lead to the beginning of the shattered life and the growth of the village settlement. The Neolithic is a culture has a flowing characteristics. There is the most important here a beginning of agriculture activities and domestication of animal and gradings and polishing of stone tool having a sharp edges and use of poetry. The first topic here, a mean of Neolithic revolution. That is the most important here. Sometime this period is a term as the Neolithic revolution on the basis of the important change in a man as a social economical life. The use of the sharp and polished Neolithic tools made it easier to cultivate the soil. It was accompanied by their practice of domestication of animal, and this change is a turn resulted in the emergence of settled agriculture communities. The Neolithics is a people also produce a pottery for their purpose of storing of grain. That is the most important. The Neolithic people also produce a pottery for there is a purpose of storing of grain. As the redevelopment in the Neolithic phase greatly affected their human life. Some scholars have used the term the Neolithic revolution to significance this change, but most of the scholars believe that this change thought the significance should be a view in their context of earlier progress during to the Paleolithics and Mesolithics as, and thus should be considered as a evolution rather than to re-evolution.
The next here, tool of Neolithic period. There is the most important tools here. The Neolithic tools consist of ground tool having smooth surface and well-rounded and symmetrical shape. The gratings is made of tool sharp, polished, and more effective than those it is earlier period. The ground stone tools of the Neolithic period is including different types of axes called salt. Besides the stone tools, is the size of the pillar has also is added is a various types of bone objects such as needles, scrapers, and warrior and arrowhead and pendant and bangles and earrings here. Here show the tools of different size in here in picture. There is a most important. There is also show here diagram. There is a most important. There are different size. And there is a Netflix as tools. Here is the most important. There is a very sharp and there is the most important for the hunting. This tool is the most important because there is a very sharp and the kill the animals the one first time. There is a most important tool here. This tool is made by the bone. There is a most important here. The bone has a crack them and there is a make a tools. There are bone tool. Here show the bone as a tools. There is a most important here shape and size. And there is a size and there is 25 and there is a very sharp. And there is sharpness is the very useful the killing and hunting of animal. There is a next topic is geographical distribution of the Neolithic sites. There are Neolithic sites where it spread over to almost all the regions of India is a subcontinent, and in the northern western region is the Maraghar classical site of Kanchi, explain of Balochistan. There is an excavation of the Maraghar as have revealed there is evidence of house built by the Neolithic people, and this were built of the sun-dried brick, and this house were to divide it into small room. The evidence of the cultivation of crop like a wheat, wheels, and the cotton were discovered from here. The important site is the Kashmir Valley include Burzaham and the Gufro coral. There is a developing pit and the other is a circular of rectangular at these sides from an important feature of the Neolithic culture. The Valence Valley is along this edge of the Vindhyan plateaus near the Allahabad, and the Uttar Pradesh also is many Neolithic sites such as the Koldiva as a Maghara. There is Neolithic tools is a both stone and the bone, and poetry other is a artifact. Flora and fauna is a remaining have been to found from these sites. And in a Vihar and the mid Gangotri Valley region is a Chiran went in the most popular Neolithic site. Several Neolithic sites are present cover the hill of the Assam, Meghalaya and Nagaland. And the tools like a Neolithic salt, a small ground axis along with there is a remind of poetry has been to found from this area. In the South India is a Neolithic settlement where discovered along the river Bhima, Krishna and Tungavodara and the Kaveri. Some important sites are the Sanghakula is a Brahmaris and Musk is a Pikil Hall and the Hall there is a Karnataka. Uttanar is a Nagajukonda is the Buddhism is the Andhra Pradesh and Payomambalis is the Tamil Nadu. This side has a yarded developing is a pitch along with there is a evidence of cultivation of the camels and the domestication of animal milters, ragis, and was one of the earliest crops is a cultivation by their villagers of South India. Here show the map. Here show the most important map here. Neolithic site is a Swedish Neolithic site is a square shape. A modern town is a triangle shape and present external boundary as their little shape. There is the most important here and show their map. There is the most important. There is a maximum here. There is use of this side of Madras. There is the most important and there is a people here live in this time. The next point here are substance of pattern. There is the most important here substance patterns. There are apart there are
advent of agriculture mark a significant change in the Neolithic phase. There is a people cultivated to various kind of crops such as wheat, cereals, rice, millet, and is a lentil, etc. Depending on their geographical condition, agriculture is give a impetus is an animal and domestically, and hunting still is a remaining an important occupation. The people eat domestically animals which is included sheep, goat, cattle, etc. and also hunted the wild animals such as boar, nigai, jellies, etc. Different kind of stone tools were made by their people and there is already been to discuss it. The Netherlands peoples is also manufacture of pottery, there which is initially their handmade and other is later turned on their wheels and the fire a large kilns. There was a major means of storage for the game and the nutshell we can say that is a Netherlands is a culture where is characterized by the change from the hunting and gathering to the cultivation of plant and domestically animal. The new polish is a tools made it easier for human to the cultivate. There is the most important here. New polish tools made it easier to the human cultivation, hunt and perform other activity in the better manner. It lead to the great ability of food resource as well as to be on increasing as a population, which is a term that resulted in their increasing in the number of village settlement. The Neolithic is a culture created the condition which is a help in the growth of town in the later period. यदि हम यहाँ पर बात करें अत्यंत महत्वपूर्ण युग यानी नवपाषाण युग की सभ्यता और खाद्य उत्पाद का आगमन, यानी इस समय जो था मनुष्य ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए इसको नवपाषाण युग की सभ्यताओं के रूप में यहाँ परिभाषित करने की कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते इतिहास पूर्व अंतिम चरम को नवपाषाण युग का नाम दिया गया और जो है नियोलिथिक्स शब्द को ग्रीक शब्द नियो जिसका अर्थ था नया और लिथिक्स जिसका अर्थ था पत्थर से लिया गया है। अंततः नियोलिथिक युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नवपाषाण युग यानी नया पाषाण युग। भारतीय उपमहाद्वीपों में इसका काल जो है क्रमशः 8000 BC यानी ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबक द्वारा किया गया था। युग की प्रमुख विशेषताएं थी नए किस्म के घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। इस काल के पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी पहचाना जा सकता है। इसके वजह से जीवन में अस्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांवों में आबादी का जो है विकास हुआ। नवपाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताओं में से जाना जा सकता है। इनकी विशेषता देखा जाए तो सबसे पहले तो यही था कृषि संबंधी गतिविधियों का इस समय आरंभ हो चुका था। घरों में पशुपालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तीखे नुकेले पत्थर के औजार की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत भी इसी समय के दौरान हुआ था। पटरी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना यानी इनका सबसे बड़ा खासियतों में से एक था जिसको वो संग्रहालय के लिए उपयोग किया करते थे, यानी जो वीट वूट्स होती थी उसको ग्रेन उनको जो है इकट्ठा करने के लिए जो है पॉटरी का इस्तेमाल किया करते थे यानी मिट्टी के बर्तनों का, जो कि इनके बहुत महत्वपूर्ण में से एक था। उसके पश्चात आता है कि पहला पॉइंट की नवपाषाणिक क्रांति क्या थी। नवपाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हो? कहते हैं व्यक्तियों के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर जो है कभी कभी इस काल अवधि को हम नवपाषाण क्रांति का नाम भी दिया जा सकता है। पहने और पॉलिश किए गए पत्थरों के नए औजारों ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया था। इसके साथ साथ पशुएं घरों में रख कर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाले स्थायी जातियों की स्थापना भी हो चुकी थी। नवपाषाण युग के चलन में जो है पूर्ण विकसित विकास ने मानव जीवन की अत्यधिक प्रभावित किया था, जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इस परिवर्तनों को महत्व को दर्शाने के लिए नवपाषाणकालीन क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वान का यह विश्वास है कि यद्यपि यह जो है परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि इन परिवर्तन को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुए पिछली प्रगति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अंततः इसे जो है सतत विकास माना जाए, न कि क्रांति। देखिए सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन अगर हम साफ तौर पे देखें तो खेतीबाड़ी की जो है कार्य में संलग्न होना ये जो है क्रांति का ही एक रूप देखा जा सकता है। लेकिन बहुत से जो है विद्वानों ने जो है इसका अपना अलग ही महत्व दिया है। किसी ने इसको सतत विकास
माना है तो किसी ने इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया है। तो सबका अपना अपना विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो मानव में इस समय बहुत ही बदलाव आ गया और इंसानों ने जो है अपना घर बना के अपने गांव में रहना सीख लिया था और इनके पास हर चीज़ की सुविधाएं जो थी विकसित कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नवपाषाण युग के औजार। देखिए, नवपाषाण कहते हैं ना, कोई भी काल के अगर हम औजार देखें तो उस काल की सभ्यताओं की विशेषताओं को जो है उजागर करता है, क्योंकि औजार ही बहुत कुछ बता देती है। नवपाषाण युग के औजारों में चिकनी सतह वाले घिसाई के औजार और भली भांति गोलाई किए हुए नपे तुले आकार के औजार शामिल थे, जैसे आज के समय में बनाया जाता है। घिसाई ने औजारों को पहना और पॉलिश किया गया आकार दिया, और पॉलिश ने इस औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावशाली बना दिया, यानी काफ़ी जो था इसकी पॉलिश को निखारा गया। जैसे कि इन चित्रों में भी आप देख सकते हो, इन चित्रों में आप देख सकते हो कि इनको जो है कैसे इन्होंने घिसाई करके जो कितना तिखा और कितना पतला कर दिया था। इनकी हाइट भी देख सकते हो कितने से कितना दिया गया है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टूल को बता सकता है। देखिए कितना इन्होंने कितना जो है बारीकी से साथ जो है इन औजारों का जो है निर्माण किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़रूरी था। और भी देखते हैं इनके औजार जो आपके समझ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। देखिए यहाँ पर नवपाषाण युग के औजार कितना जो है बड़ी कितनी तिखी बनाई गई थी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी हाइट लंबाई सब यहाँ दर्शाया गया है, जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि ये आजकल के जैसे ही वो बनाया करते थे। बेशकली उनके बनाने का जो तकनीक था अलग था, वो हड्डियों का भी प्रयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, और आने वाला समय में धीरे धीरे उनकी विकास और भी होती चली गई। देखिए ये सब जो बनाई गई है कितनी अनोखी है और कितनी विचित्र है। हर कोई शिकार के लिए वो लोग अलग अलग तरीक़ों का जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए ज़रूरी होगा कि भाई उस समय के जो लोग थे किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इन औजारों को देखने से इनकी विशेषताओं का हमें पता लग जाता है कि वो किस प्रकार के जो है उस समय जानवर हुआ करती थी, किस प्रकार जो है ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हो कि ऊपर से भी कोई चीज़ फंसाने के लिए उन्होंने इन चीज़ों का व्यवस्था पहले से ही कर रखा था। ये सारे औजार जो है बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है उस समय के जो है काल को दर्शाने के लिए, जो कि आप यहाँ समझ सकते हो, देख सकते हो कि कई जगहों पे तो हॉल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बांधने के लिए उपयोग किया करते थे, तो जो कि इनकी औजारों की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। देखा जाए तो नवपाषाण युग के घिसाई किए गए औजार में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल थी, जिन्हें हम सेलेक्ट यानी जो है आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजारों के अतिरिक्त इस युग के स्थान पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं जैसे सुइयाँ, स्केपर, भूमि में छिद्र करने वाले औजार, वेरेट, तीरों के जो अग्रभाग, पैटर्न्स, चूड़ियाँ और कान के बुंदे आदि भी पाए गए हैं, जिसको हमने अभी डायग्राम में देखा भी है। ये सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण डायग्राम थे, जिसको ये दर्शाता था कि इस समय जो है नियोलिथिक एज में किस प्रकार के लोग जो थे विकसित हो चुके थे और उनका रहन सहन, उनके औजार किस प्रकार के थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नवपाषाण युगीन स्थलों की जो है भौगोलिक विभाजन। देखिए भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग संपूर्ण भूभाग में नवपाषाण युगीन स्थलों का जो है विस्तार मिलती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो बलुचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में जो है मेहरागढ़ ऐसी ही एक उत्कृष्ट स्थल है। मेहरागढ़ में की गई खुदाई से नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के समक्ष सामने आए हैं। यह घर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए गए थे और इस घरों में छोटे कमरे के विभाजन भी किए गए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इस असल पर जो है साफ देखने को मिल जाता है। कश्मीर घाटी में प्रमुख स्थानों में जो है मुजहोम और गुफरा कौल्स शामिल हैं। इन नवपाषाण युग की सभ्यताओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार और आयताकार गड्ढे भी जो है विशेष अपना स्थान बता रहे हैं। विद्या पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित बेलना घाटी में भी अनेक स्थान ऐसे हैं जहां जो कुल्हाड़ियाँ और महागारा पाए गए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके जो है इस समय की विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो हर तरह से जो है काफ़ी विकसित हो चुके थे और वो गांव में रहना शुभ आरंभ कर चुके थे, जिस वजह से उनका जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया था। कई जगहों तो आप देखा भी है कि वो ईंटों के घर में रहा करते थे। गुफाओं जो थी उनकी मनपसंद जगह होती थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ घर बना के और जीवन यापन करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है।
नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बनाए गए थे और मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियां, फूल, पौधे और प्राणियों के अवशेष इन स्थानों पर हमें मिले हैं। इससे ये प्रमाण साफ हो जाता है। बिहार और जो है मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है चिरंड बहुत ही लोकप्रिय स्थल है और असम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद है। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियाँ के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं। दक्षिण भारत में भीम, कृष्ण और तुंगभद्र और कावेरी नदियों के किनारे किनारे अनेक स्थल आबादी की खोज भी की गई है। कुछ प्रमुख स्थल जो है सघन कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिल्हाल, कोल्हार कर्नाटक में जो है उन्नूर और जो है नागा अर्जुन कोडा में, आंध्र प्रदेश में बुढ़ाल और तमिलनाडु में पाली। इस स्थानों पर खेती और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांवों में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात को दर्शाता है। इन सब बातों को आप मैप से भी समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा स्क्वायर शेप दिख रहे होंगे, जैसे श्रीनगर के पास है जो ब्रहजोहोम है, जो कि एक खनन किए गए स्थल है। आधुनिक शहर आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान भारत की बाहरी सीमा जो है आपको डॉट रेखाओं में दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हो कि पूरे भारत में जो है इनकी काफ़ी जो है स्थल थी, लेकिन सबसे अधिक जो है चेन्नई के साइड आप देख सकते हो कितने सारे जो है यहाँ पर जगह को जो है स्क्वायर शेप में दिखाया गया है, जिसमें नागा अर्जुन कोडा भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, सारी पॉइंट को दिखाना बताना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर बहुत ही प्रतिबंध होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन कृपाण की पद्धति, यानी जीवन जीने की क्या पद्धति थी। नवपाषाण चरण में खेती बाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलों उगाई, जैसे गेहूं, जौ, दालें आदि। खेती बाड़ी के काम में पशुपालन गति दी गई काफ़ी। शिकार अभी भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय में से एक था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे, जिससे वो काफ़ी उपयोग इस वस्तु प्राप्त करते थे। जो शिकार किए गए जंगली जानवरों में थे सुअर, नीलगाय और चिकारा आदि। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थरों के औजारों के संबंध में पहले ही हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं। नेओलिथिक काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ से बनाया करते थे और बाद में चाक पहियों पर बनाने लग गए। इन्हें बड़ी बड़ी जो है भट्टियों में पकाया भी लगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग काफ़ी विकसित होते चले गए, जैसे आज आधुनिक युग में ऐसा होता है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि गाँव में इस तरह की पद्धति आज भी देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि ये लोग जो थे बिल्कुल गाँव में जैसे लोग रहते हैं उस तरह से जीवन यापन ये लोग किया करते थे। कहते हैं अगर देखा जाए तो अनाज भंडार के लिए मुख्य साधन थे। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि निथोलिक सभ्यताओं के विशेष रूप से शिकार और संग्रहकर्ता में पेड़ पौधे, खेती बाड़ी करने और पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तन होने वाली जनसमूह के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी वो लोग जितने भी थे उनके जो मिट्टी घरे बनाए जाते थे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुए करते थे कि अनाज के भंडारण करने के लिए उपयोग किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। पॉलिश किए गए औजारों ने मानवों के लिए खेती बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंधित कामों को आसान कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुलता में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ती आबादी के कारण गांवों के स्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके बाद के समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिला। तो आज के समय गाँव अगर देखोगे तो कुछ हद तक इसी तरह से नजर आएगा। तो ये नेथलिक्स एज के रूप में ही देखा जा सकता है, जहाँ पर विकास की हर एक चरण आपको स्पष्ट और जो है दिखेगा। The next topic is here a prehistoric art. The prehistoric art is the most important topic here. The rock painting, where is an important and distinctive feature of the Mesothelic peoples, and though there is a beginning maybe a traced to the upper Paleolithic period, and this painting are made on the walls of rock strata, a maximum of which has been found at the Bhimbetka and Madhya Pradesh, and this throws a light on the social and economical life on the Mesothelic people. And the main subject of the painting are huntings, fishing, and is a food gatherings. That is the most important. An animal like a boar, buffalo, monkey, and the nilgai are there often to the depicted of this painting. And this social activity, like there is a child birth, rearing of child, and the burial ceremony, and also show in there is a rock painting. This scenes of hunting in the groups
or suggest that the mesothics people live in the small group. Thus we can say that the Mesolithic society was more stable than the one of the Paleolithic as, and though there is a huntings and gatherings still remain, it is a main is a preoccupation there is the most important. And important also here to show the diagram. This diagram is the most important of this times of represent. There is the most important diagram here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है प्रो ऐतिहासिक कला, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चट्टानों पर चित्रकारी मध्य पाषाण जो है मेसोलिथिक युग के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न विशेषताएं थी। यद्यपि इसकी जो है शुरुआत के संकेत उत्तर पूरा पाषाण काल से भी हमें पाए गए हैं। यह चित्रकारी चट्टानों में बनाए गए बसेरों के दीवारों पर बनाई गई थी और इनमें से अधिकतर चित्रकारी जो थे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाई गई। यानी प्रो-ऐतिहासिक कला के रूप में इसी बात को आप समझ सकते हो कि वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर हर तरह की चित्रकारी करते थे। जैसे आप लोग भी अपने जो है बॉल पे क्या लगाते हो, चित्र लगाते हो, वो लोग चित्र स्वयं बनाया करते थे क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इससे उनके चित्र जो थे हमें ये समझाने के लिए बहुत पर्याप्त थे कि वो किस प्रकार के एक्टिविटी किया करते थे। इन्हें मध्य पाषाण लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन की झांकी हमें साफ देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रकारी में पाए गए चित्रों का मुख्य विषय था शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना। ये सब बातों को उन्होंने दर्शाया भी था। जैसे जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय आदि का चित्र आमतौर पर चित्रों में देखने को मिल जाता है। चट्टानों पर की गई चित्रकारी में बच्चों का जन्म, बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियाँ पूरी किए जाने वाले संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग काफ़ी समझ वाले थे कि उनके आने वाला पीढ़ी जो है उनको उसी प्रकार से जो है उनको दफनाए या उसी तरह से जो है बच्चों का पालन पोषण करे। जैसे हम आज के समय में नेट जो है इंटरनेट हो गया, किताबों में हम लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सेम वो भी अपने बच्चों के इसी प्रकार से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया करते थे। एक समूह में रहकर शिकार करने के दृश्य को संकेत मिलता है कि उनको ये भी बात सिखाने की कोशिश करते थे कि हमें एक रह के शिकार करना चाहिए, और इस बात को वो दर्शाने के लिए जो है उन्होंने दीवारों पर खोदना और दीवारों पर चित्र बनाना सब उन्हें मिलती थी। कहते हैं मध्य पाषाण लोग जो है समूह बनाकर रहते थे और जीवन अपने यापन करते थे। अंततः हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाणकालीन समाज जो है पूरा पाषाण युग के लोगों में अधिक स्थिरता और शिकार संग्रह आदि भी इसका मुख्य पेशा था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो ये लोग बहुत ही काफ़ी समझदार थे कि आने वाला पीढ़ी भी उनका अनुसरण करे, इसलिए दीवारों पर पत्थरों पर अपना जो है हर एक रूल रेगुलेशन को बना दिया करते थे। ठीक है, इससे वो लोग जो थे शिकार करने की हर पद्धति को समझ लिया करते थे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हो कि उस समय की क्या पद्धति थी। यह चित्र बेशक धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार किसी जानवर पर बैठ के ये लोग शिकार करने जा रहे हैं और किस प्रकार जो ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो बहुत काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम था। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण था खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो है हमारा हड़प्पा कल्चर है, तो उसको देखना मत भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान एसएससी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान एसएससी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान एसएससी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।